Namaskar everyone. Welcome to Masala Chai with Rajiv Khurana. This is our second episode. The first episode was very well attended, and this second episode has a fabulous registration. At the time of starting, we had almost 504 people who had registered. And I'm sure as the time progresses, a lot of people would be joining. And I do expect the attendance to be somewhere around 50% because people do get busy later on something else. We'll be using Hinglish as our mode of communication, a blend of English with a tadka of Hindi. There was a special request made on this also because some people are joining in from smaller cities also and they shared their discomfort with the language. So we said we'll talk in both the languages. मतलब ये है कि हम बात को समझा सकें और सिंपल भाषा में बात कर सकें क्योंकि चैटिंग, हैकिंग, एडवाइजिंग and igniting are the four elements of this chai. I am not serving any chai per se, but this is an acronym that I created for Masala Chai, chatting, hacking, advising, and igniting the thoughts. And today, in this conversation with Ajay Tandon, मैं बहुत पहलू विल के एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के तौर पे लेना चाहूँगा जिसमें मेरी नज़र आपके क्वेश्चंस पे भी रहेगी, आपके रिएक्शंस पे भी रहेगी, उन्हें भी मैं बीच बीच में लेने की कोशिश करूंगा और शुरू में एक स्टार्टर के तौर पे कुछ सवाल अजय के साथ मैं पूछूंगा और उसके बाद में मैं जो आपके क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें टेकअप करके आगे बढ़ना चाहूंगा। तो सबसे पहले अजय टंडन के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। इंसिडेंटली मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि मेरे कॉलेज का पहला दिन मेरा पहला दोस्त जो बना था वो अजय टंडन था। But today he is here in the capacity of a thorough professional, a leading lawyer, a winner of various court battles across India, a name to be reckoned with, a person who super specializes in areas like corporate legal practices, businesses, property matters, family matters. He's a senior mediator, arbitrator, and in सबके साथ साथ he is also a highly committed social worker. So Ajay, welcome to Masala Chai with Rajiv Khurana, and I am sure while you will do the chai part, the chatting, hacking, advising, and igniting, I'll add the masala part in our conversation. All right, Ajay. Thank you, Rajiv. Ajay, incidentally, is also the managing partner of LexIndis Law Offices. अच्छा जरा क्विकली बताएंगे लेक्सइंडिस लॉ ऑफिसेज कितने समय से काम कर रही है और आपका फोकस है क्या? बिफोर आई गो अहेड विद माय क्वेश्चंस प्लीज। Well, it's our 12th year. 12 साल होने को जा रहे हैं and we are 4 senior partners, Sunil Gandhi, Saran Suri and Manjula Gandhi along with me. I'm the managing partner there. And then we have senior associates, senior consultants, associate partners and all, practice heads, principal agents and all. And well, we carry with us about more than 400 years of professional experience, I'll say. That's fabulous Ajay. Thank you so much. And I'm sure आज आपके उस एक्सपीरियंस को मैं एक अच्छी तरह से निचोड़ते हुए आम आदमी की भाषा में लोगों तक बातें रखूंगा क्योंकि अभी तक 213 पार्टिसिपेंट्स हैं और काफी लोग जुड़ेंगे जिनमें कई लोग आपके फैंस भी हैं एज ए लॉयर्स। बट आज मेरी आपसे ये कोशिश होगी कि मैं डॉक्टर से जब इंटरव्यू लेता हूं तो उनको बोलता हूं आम आदमी की भाषा में बात करो। तो आज मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आम आदमी की भाषा में बात करें बिकॉज एक प्राइवेट सिटीजन के तौर पे सबको हमने लीगल जार्गन्स नहीं बताने हैं लेकिन उसका मतलब क्या होता है और उसका उनकी लाइफ के साथ क्या वास्ता होगा हम उस बारे में जरूर बात करेंगे आज। तो बात को शुरू में आगे बढ़ाने के लिए मैं ना एक छोटा सा पोल आपके साथ करना चाहता हूं जो 15 सेकंड में खत्म हो जाएगा और मैं चाहूंगा कि जरा अपने फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे हम और इस दो छोटे छोटे सवालों का जवाब देंगे that will give us a flavor of will. So here is the poll coming up in front of you
And I'm asking you, there are 225 participants. Question number 1, बड़ा छोटा सा है. Have you prepared your personal will? Yes or no? Simple. और दूसरा सवाल है, do you plan to write your will or modify your will in the near future? Yes, no, not sure. और अभी तक 115 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं. 57% पोलिंग हो चुकी है. अजय देखिए कितनी स्पीड के साथ ये पोलिंग चल रही है. और अभी थोड़ी देर में मैं ये रिजल्ट्स जैसे ही 1 मिनट खत्म होता है या 200 तक का नंबर क्रॉस कर जाता है, मैं ये पोल रिजल्ट सबके सामने रखूंगा. और काइंडली चैट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर मत दीजिए, आपको सिर्फ पोल को ही रिस्पॉन्ड करना है प्लीज. तो 177 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, 180 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं. और अब हमारे को देखना है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बनकर आता है. हैव यू प्रिपेयर्ड योर पर्सनल विल? यस पे क्या आंसर है, नो पे क्या आंसर है. सेकंड, डू यू प्लान टू राइट योर विल और मॉडिफाई योर विल इन द नियर फ्यूचर? यस पे क्या आंसर है, नो पे क्या आंसर है, नॉट श्योर पे क्या आंसर है. तो मेरे दोस्तों 195 हो चुके हैं. तो चलिए नंबर 200 तक पहुंच जाए तो मैं इसे क्लोज करूं, नहीं तो मैं अभी क्लोज करूं. 79% पोलिंग हो चुकी हुई है हमारे साथ में. एंड प्लीज आपने जो आंसर करना है वो सिर्फ चैट बॉक्स पे करना है. एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैंने देखा है कुछ लोगों ने क्वेश्चन चैट में डाल दिए हैं. वी हैव अ सेपरेट टैब कॉल्ड Q&A. आप अपने क्वेश्चन को वहां से कॉपी करके Q&A में डालें, बिकॉज आई वुड बी इन ए पोजीशन टू टेक क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम द Q&A टैब. और चैट बॉक्स में तो आप सिर्फ अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, जैसा भी आप डालना चाहते हैं. दूसरों के लिए कमेंट्स डाल सकते हैं, अपना ओपिनियन डाल सकते हैं. एंड I'll try to read those and try to make it as interactive as possible. So, Ajay, with your permission, I'm ending the poll. We have 207 responses out of 253 participants so far. 81% voted. And now let's see the results which are coming up. Purnima, kindly make a note of these figures also. And here we are, my dear friends. Have you prepared your personal will? 15% people feel that they have prepared the personal will. 85% people have not prepared their personal will. This is a very interesting data. Second question, do you plan to write your will or modify your will in the near future? 60% people feel yes, 10% feel no. That means जिन्होंने बना के रखी है वो संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन 23% people are not sure. Either they are not sure whether they are going to be modifying it or not sure whether they will be making it. But this is the result, and I must compliment everyone for being very forthright and very quick, that in 2 minutes time we could create 208 votes in front. So now let me now just close it and now get on to the discussions with Ajay straight away. So these are the results in front of you. Read it once again. If you want to take a picture of this, do it. And then, of course, we shall be getting into our discussions. So Ajay, while I'm taking a picture, I expect you to smile along with, so that this data gets stored. Sure. And here we are. All right. So let me just close it, stop sharing it, and get on to the questions which people are waiting for. Ajay, जब हम छोटे थे, 60s की पैदावार, 70s, 80s, 90s में हर विलन के हाथ में एक कागज होता था और एंड में लड़ाई इसी बात की होती थी कि वसीयत पे साइन कर दो, विल पे साइन कर दो. आजकल के मूवीज में ऐसी चीजें होती नहीं है, लेकिन पहले विल बहुत पॉपुलर हुआ करती थी. शायद आज के वकील समझ सकते हैं कि इस विल को काउंटर भी कैसे किया जा सकता है. तो सवाल ये आता है मेरा सबसे पहला ओपनर आपसे, ये विल है क्यों, जरूरत क्या है इसकी, क्या है ये विल और इसकी जरूरत क्या है?
विल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट्स अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन of the testator. Testator is the person who is making the will with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death. तो डेथ के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी की डिस्पोजल कैसे चाहता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चाहता है, मेकर ऑफ द विल जो कि टेस्टेटर है, दैट इज उसकी जब वो लीगल डिक्लेरेशन करता है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द विल. तो मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, अदरवाइज विल नहीं बन सकती. मेनली तो प्रॉपर्टीज का ही झगड़ा होता है एंड प्रॉपर्टीज के लिए ही विल होती है. ओके. बट आजकल थोड़ा ट्रेंड डिफरेंट भी हो रहा है बिकॉज देर इज नाउ अ कंसेप्ट ऑफ लिविंग विल. 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है वेयर अ पर्सन हु वांट्स टू मेक, इफ ही गोज इनटू अ कंडीशन वेयर ही कांट कम्युनिकेट, वो कुछ उसकी मेडिकली या फिजिकली कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो उस वक्त कुछ नहीं बता पाएगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए उस कंडीशन में, तो वो उसके लिए भी अपनी लीगल डिक्लेरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ विल बना सकता है. यूथनेसिया इज पॉपुलरली नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो पहले वो इतना रिकग्नाइज नहीं था, बट with the judgment of Supreme Court in 2018, it is now recognized and accepted even in India. और एक और थोड़ा सा ट्रेंड चला है कि आजकल organs या even the entire body of the person that is also being donated for research and other purposes. आदमी कहता है कि क्या जला के या दफना के क्या फायदा है उसका, तो why not put it to better use. तो ये वो तो भी मैंने भी किया हुआ है, और मैं चाहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करें. मैंने तो पूरी बॉडी को ही डोनेट करके रखा हुआ है, और ये विल पूरा प्रॉपर तरीके से बना के रखी हुई है. इट्स अ वेरी नोबल थिंग यू हैव डन राजीव, और सबको ही ऑलमोस्ट करना चाहिए ताकि जो जो पार्ट्स उसमें से यूजेबल हों, आपके जो जो ऑर्गन्स यूजेबल हों, वो किसी के काम आए और उसकी दुआ भी मिले और वो उसको. बस दिमाग नहीं इस्तेमाल कोई कर पाएंगे क्योंकि वो खाली नजर आएगा. एनीवे, बात को आगे बढ़ाते हैं. तो ये बात बताइए कि क्या विल अकेले अकेले बनती है या जॉइंट विल भी बन सकती है? नहीं, आप जॉइंट विल भी बना सकते हो. हस्बैंड एंड वाइफ कैन ऑलवेज गो इन फॉर अ जॉइंट एंड अ म्यूचुअल विल, ओके. जिसमें इट बिकम्स वेरी इजी. इंस्टेड ऑफ ड्राफ्टिंग दो विल बनाने के बजाय आप एक ही विल बना दो, उसमें हस्बैंड की प्रॉपर्टीज आपने डिस्क्राइब कर दी, वाइफ की कर दी, और म्यूचुअल में इट्स वेरी कन्वीनियंट टू से कि जी ऑन द डेथ ऑफ either of the two, the survivor becomes the sole, absolute, and exclusive owner in possession of all the properties of the deceased. And उसके बाद then after both of them, they can say कि जी दोनों के बाद all the properties, whether of the husband or of the wife, they will devolve in the following manner. किसको जाएगी? Within the legal years जाएगी, outside the legal years, charity में, कहीं भी. तो वो सारा हो सकता है and it can be done very convenient. Acha, Ajay, tell me, people want to, generally people are scared of going to doctors or going to lawyers. वो कहते हैं यार एक सिंपल सी चीज बना दो कि विल मैंने बनानी है, तो क्या बिना कॉम्प्लिकेशन के मैं कोई विल बना सकता हूँ, और उसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? नहीं, कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है. हाँ, इट शुड बी वेरी डेफिनेट, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, उसमें डाउट बिल्कुल कहीं से भी क्रिएट नहीं होना चाहिए. प्रॉपर्टीज क्या क्या है प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए. ओके. किसको जाना है, द बेनिफिशियरीज और द लीगेटीज एज वी कॉल इट, वो भी प्रॉपरली आइडेंटिफाई होना चाहिए. किसी बात में कल को कंफ्यूजन ना आए, ये नहीं कि जी ये इस प्रॉपर्टी को नहीं उस प्रॉपर्टी को रेफर कर रहे थे, या इस आदमी को नहीं उस आदमी को रेफर कर रहे थे, या इस बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन को नहीं उसको कर रहे थे. तो उसमें कल को प्रॉब्लम्स या डिस्प्यूट्स ना उठे. तो proper care should be taken कि at the time of drafting the will, these details are properly incorporated in the will. I think that you're making a very interesting point, Ajay, because in management parlance, we also use that term called KISS, keep it straight and simple. So even defining the will also, we need to keep it very straight and simple in a very unambiguous manner, कि property का address हो, जिसका नाम हो उसका पूरा नाम हो, पता हो, ताकि कोई इसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके. कोई नाम अगर सुनीता तो 4 सुनीता पैदा ना हो जाए कि ये तो मेरे नाम से था. उसका पूरा का पूरा वर्णन होना चाहिए. This is what you are saying. Exactly कि भाई आइडेंटिफाई होना चाहिए कौन, who is the beneficiary, who is the person. अदरवाइज अगर विल से ही आपने फिर डिस्प्यूट क्रिएट करनी है तो फिर फायदा क्या हुआ उसका. तो बनाने को अ सिंपल शॉर्ट क्रिस्प
बिल आप खुद भी बना सकते हो, हम्म। उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो जो उसको चीजें सिंपल बनाने के लिए उसको क्या करना पड़े? वो कहता है जी एक मुझे वकील साहब के एक पास एक नहीं चाहिए, वकील का बिल बहुत बड़ा होता है, तो मुझे एक एक सिंपल सी बात बता दो, क्या भाषा लिखूं और कैसे बनाऊं? एक चीज जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है, हम जो देखते हैं कि एक आदमी कहता है कि जी मेरे बाद इसको और फिर उसके बाद उसको, हम्म। ये चीज इन लॉ इज नॉट परमिसिबल। आपको अगर बिल बनानी है तो यू हैव टू मेक इट इन फेवर ऑफ अ पर्सन सोलली, एब्सोल्युटली एंड एक्सक्लूसिवली, या फिर उसको सोलो एब्सोल्यूट ओनर मत बनाओ अगर आप नहीं चाहते। देन ओनली गिव अ लाइफ इंटरेस्ट और अ लाइफ स्टे, ओके। रिस्ट्रिक्टेड, इट शुड नॉट बी फुल एंड एब्सोल्यूट। हाँ, देन यू कैन डू इट कि भाई ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ सो एंड सो, फॉर एग्जाम्पल माई स्पाउस, एंड देयर आफ्टर इट विल गो इन द फॉलोइंग मैनर। आप ये नहीं कह सकते कि जी माई स्पाउस बिकम्स दी sole absolute and exclusive owner and thereafter it will go to so and so, because the moment on your death the spouse becomes the sole absolute and exclusive owner, तो फिर तो उसकी मर्जी है। then it has to go as per the will of the spouse, फिर आपकी वहां नहीं चलेगी। हाँ, हो सकता है वहां स्पाउस भी वही चीज करे जो आप चाहते थे, that is different, but then it will not be bounding, the second part may not be binding in that case. So in which case you cannot say that I expect my spouse to dispose of or will this in such and such manner. आप कह सकते हैं, बट देन इट इज सोनली द डिस्क्रिशन ऑफ द पर्सन हु हैज टू डिस्पोज इट ऑफ इन द मैनर। वो अपने लाइफ टाइम में भी यूज कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या फिर इन डेफरेंस टू योर विशेस इन अ सिमिलर मैनर भी कर सकते हैं। बट अच्छा एक बात समझ नहीं आती, लोगों को भी थोड़ा सा डर रहता है कि यार लीगल भाषा में बनानी चाहिए, कौन जाएगा रजिस्टर कराने, कौन जाएगा कोई नोटरी कराने। अब लोग, मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, इनफैक्ट ईमेल्स आई हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, चलिए मैं अभी ले लेता हूं कि क्या विल को रजिस्टर कराना जरूरी है? नहीं, बिल को रजिस्टर कराना कोई जरूरी नहीं है। बिल पे कोई कोर्ट फी, कोई स्टाम्प ड्यूटी कुछ पेबल नहीं है। इट कैन बी ऑन अ सिंपल प्लेन पीस ऑफ पेपर, उस पर आप बिल बना सकते हैं। हाँ, जो बहुत सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट बिल की है वो है ऑफ द 2 अटेस्टिंग विटनेसेस। उसका आपको बहुत ख्याल रखना है कि जो 2 अटेस्टिंग विटनेसेस आप चूज कर रहे हैं एज अ टेस्टेटर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द बिल, वो डिपेंडेबल लोग होने चाहिए। They should later on not be won over or go berserk, very. They should be, they should stand by the bill. That is what I always advise कि आपको जब चूज करना है तो इस चीज को बहुत अच्छे से चूज कीजिए कि आपके अटेस्टिंग विटनेसेस कौन होंगे। लोगों का ये भी बड़ी गलतफहमी होती है कि जिसको डिसइनहेरिट कर रहे हैं उससे साइन करा लिए, क्योंकि अटेस्टिंग विटनेस का रोल जो है ना, what is attestation in law? Attestation is the person says either I have seen the testator signing on the will or I have received the confirmation from the testator कि हाँ ये उसके साइन है, उसने विल बनाई है और उसके ये साइन है। और एन अटेस्टिंग विटनेस, उसको ये जरूरी नहीं है कि उसको कंटेंट्स ऑफ द विल पता हो, उसको कंटेंट्स ऑफ द विल ना भी पता हो। यू कांट फोर्स के भी अगर आपने साइन किया तो आपको कंटेंट्स पता होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ के अटेस्टिंग विटनेस को कंटेंट्स पता होने चाहिए। मगर ये कहना करना कि जी नॉन डिपेंडेबल बंदे को, पर्टिकुलरली अ पर्सन हु इज बीइंग डिसइनहेरिटेड एंड ऑल, उसको तो कभी भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं बनाना चाहिए। अजय, हम यहाँ पे 2 चीजें इकट्ठी लेके चल रहे हैं। एक हमने विल के रजिस्ट्रेशन की बात करी और दूसरे विल के कंपोनेंट्स की बात करी। मैं दोनों पे टिकना चाहता हूँ और एक एक करके लेके चलना चाहता हूँ। चलिए हम पहले रजिस्ट्रेशन की ही बात करते हैं। आज मेरे पास एक सवाल और भी आया कि भाई कोविड का टाइम है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, बिल बनानी है, मैं 70+ हूँ, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पर्सन हु सेंड मी द क्वेश्चन। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? क्या मेरे को कोर्ट जाके रजिस्टर करा के रजिस्ट्रेशन फी जमा कराएंगे तभी मेरी विल पक्की होगी? तो आपने ये आंसर कर दिया कि रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी नहीं है। अब इसी से जुड़ा एक और पहलू है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा ली है और उसके बाद में आप उसे फिर चेंज करना चाहते हो और अब आप रजिस्टर नहीं कराते, तब क्या होगा? नहीं, बिल बाय इट्स वेरी नेचर इज रिवोकेबल, वो कभी भी रिवोक कर सकती है, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, सो फार एज वैलिडिटी इज कंसर्न, दोनों बराबर है। हाँ, ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस एक विल की बढ़ जाती है
अगर आपने जाके उसको रजिस्टर करा लिया। क्यों? आजकल तो वहां पे, पहले नहीं होता था, आजकल तो टेस्टेटर की भी फोटो खींची जाती है एंड इवन अटेस्टिंग विटनेसेस की फोटोग्राफ खींची जाती है और रजिस्ट्रार प्रॉपरली अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूशन ऑफ द विल की कंप्लाई हो गई हैं। वो टेस्टेटर से भी वेरीफाई करता है, अटेस्टिंग विटनेसेस से भी वेरीफाई करता है, उसके बाद ही वो परमिट करता है कि यस नाउ दिस विल कैन बी रजिस्टर्ड। और विद फोटोग्राफ्स एंड ऑल, उससे ऑथेंटिसिटी बहुत बढ़ जाती है। ऑल्दो लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इवन एन अनरजिस्टर्ड विल इज एज गुड एज अ रजिस्टर्ड विल। एक और एस्पेक्ट भी आजकल देखा गया है कि अगर आपकी विल रजिस्टर्ड है तो व्हेन यू गो फॉर म्यूटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड, जब उसके नाम की सब्स्टिट्यूशन करानी होती है, वेदर इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी या आपकी मूवेबल्स हैं, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, एफडीज हैं, तो जो रजिस्टर्ड विल है ना, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी विद द अथॉरिटीज एंड दीज बॉडीज, दैट इज वेरी मच, इट्स अ लॉट बेटर कि अगर आप रजिस्टर्ड विल लेके जाते हैं और उनको ये सबमिट करते हैं तो वो उस पे बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और फॉर्मेलिटीज के साथ आपका वो उसका काम कर देते हैं। मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूंगा और इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा कि जब आप कह रहे हैं रजिस्टर्ड विल में आपने सारी डिटेल्स दे दी, वंडरफुल, बट नाउ सपोजिंग द पर्सन इज होल्डिंग 10 fixed deposits, 3 properties, some mutual fund, and fixed deposits and mutual funds keep changing. So is it good enough that he spells out the locations of the properties, but then in a one paragraph he says all my mutual funds, all my fixed deposits will go to my son? या कि उसको सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी? देखो, जितनी आप डिटेल्स दे दोगे वो बेनिफिशियरी के लिए भी अच्छा रहता है। ओके। और जिसने जिसने बाद में नाम की ट्रांसफर करनी है, म्यूटेशंस करनी है, उसके लिए भी बड़ा अच्छा रहता है कि भाई ये बंदे को पता था, ये इसकी जेन्युइन विल है, इसको ही न्यू। और नहीं तो कई बार तो ये भी देखा गया है कि बेनिफिशियरी को पता भी नहीं होता कि कुछ और फिक्स डिपॉजिट थे, बैंक अकाउंट्स थे, पोस्ट ऑफिस थे, या कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जिनके डिटेल्स ही नहीं होते। उनको ढूंढते ढूंढते इतनी परेशानी होती है, इतनी दिक्कत आती है। तो जितना उसमें मेंशन्ड होगा उतना ही फायदा होगा, ये मेरा मानना है। ऑलराइट, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जितनी हम डिटेल्स दे सकते हैं करें, नहीं तो एक फाइट जो है आपकी एक लंबी बढ़ जाएगी इसके नहीं, अंदर। कंफ्यूजन और उसमें आप मिस आउट कर सकते हो, प्रॉपर्टी कैन गो वेस्ट, किसी को पता ही नहीं। सही बात है। और बैंक वाले तो आपके पास आएंगे नहीं बताने के लिए। बहुत रेयर होता है ऐसा कि वो आके आपको बोले कि जी यार फलाने की डेथ हो गई, आपने डेथ तो इंटीमेट कर दी और वो लीगल एयर्स के पास जाएं। बल्कि इसीलिए आजकल इस बात पे भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि नॉमिनेशन जरूर करिए। नॉमिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वेदर मूवेबल प्रॉपर्टीज और रिमूवेबल प्रॉपर्टी। बट लोगों को जनरली एक कंफ्यूजन रहता है अजय, दैट वंस इट हैज बीन नॉमिनेटेड सो देयरफॉर दैट फिक्स्ड डिपॉजिट इज willed फॉर हिम। नहीं, अगर तो आपने लॉ ये है कि नॉमिनी इज ओनली अ ट्रस्टी, ही इज ओनली एन एजेंट, एंड क्वा द क्रेडिटर, चाहे वो बैंक है, चाहे वो कंपनी है जिसके शेयर्स या डिवेंचर्स हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस अथॉरिटी कोई भी है, वो क्रेडिटर गेट्स डिस्चार्ज अगर उसने नॉमिनो को दे दिया। चाहे लीगल एयर्स का डिस्प्यूट है चाहे नहीं है, उसको वैलिड डिस्चार्ज मिल जाता है इन लॉ। बट लीगल एयर्स कैन ऑलवेज क्लेम फ्रॉम द नॉमिनी। एंड अब तो बहुत सेटल हो गया ये लॉ कि नॉमिनेशन इज नॉट एन ऑल्टरनेट वे ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन तो वही होगा जो, अगर विल है तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन, विल नहीं है तो इंटरस्टेट सक्सेशन, जो भी उसका पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से। सो लोगों को हम जरा ये क्लैरिफाई कर दें कि अगर आपने बैंक अकाउंट में भी किसी को नॉमिनी किया हुआ है तो देन आफ्टर यू द प्रोसेसिंग ऑफ द बैंक अकाउंट इज बिकम्स ईजियर, but that the person does not become totally entitled to the amount of the fixed deposit. This is what Ajay you are saying. So in case there are other successors, you will have to share it with the other successors. No, you may not even be a successor in natural law. Yeah. किसी ऐसे के नाम भी नॉमिनेशन हो सकती है, ब्रदर के नाम कर दी, फादर के नाम कर दी, who are not class 1 heirs in case of Hindus. Sure. तो मगर उसको वो राइट नहीं मिलेगा। और अगर आपने अपने लीगल एयर्स के नाम ही करी हुई है तो उसमें एज अ सक्सेशन प्लानिंग आप ये भी कर सकते हो, आप अपनी विल में लिख दो कि जिस के फेवर में मैंने नॉमिनेशन कर रखी है, ही विल बिकम द ओनर ऑफ दोज डिपॉजिट्स और अकाउंट्स और शेयर्स और डिवेंचर्स और व्हाटएवर म्यूचुअल फंड जो भी आप कह रहे हो।
तो then that fellow becomes the owner. That's a very good point, Ajay, which you're saying that अगर आपने नॉमिनी बनाया है तो विल में मेंशन कर दो कि जिसको नॉमिनी बनाया है वो उसका लीगल हेयर बन जाता है, अगर आपने उसको देना है तो, उसको देना है तो। अगर आपने उसको नहीं देना है तो आप अगर अपने आपने विल में मेंशन कर दिया तो आप अपनी इंटेंशन जाहिर कर रहे हो कि आप उसको देना चाहते हैं। हम तो नॉर्मली विल में ये ड्राफ्ट ये कर देते हैं कि wherever there is a nomination, then it will go to the nominee or the heirs of the nominee. अच्छा, इसमें मैं एक और इंटरेस्टिंग पहलू आपके साथ जोड़ना चाहूंगा कि ये तब होता है जब 2-3 बच्चे हों और कंफ्यूजन हो किसको क्या देना है, लेकिन जिसका बच्चा ही एक हो और अगर विल ना भी बने तो नॉर्मल सक्सेशन में भी उसी के पास जाए, तो मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चंस आए कि क्या उन सिचुएशन के अंदर भी विल लिखना जरूरी है और क्या उस विल को रजिस्टर कराना जरूरी है? आपका क्या कहना है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी 2 years बैक, हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप स्टोरी सुना के करेंगे तो हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक ओल्ड लेडी हु वाज अ विडो, शी केम कि अजय मैंने बिल बनानी है। तो मैंने कहा जी किसके फेवर में बनानी है? कहे जी 2 बेटियां, दोनों के फेवर में बनानी है। तो मैंने कहा फिर बिल किस लिए बनानी है? नहीं, फिर मैंने ये पूछा कि आपने दोनों को कितना कितना शेयर देना है? कहे जी बराबर देना है। मैंने कहा किस प्रॉपर्टी में कितना देना है? कहने सब में बराबर देना है। जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, whatever I own today और whatever I may own at the time of my death, आज के बाद भी मैं अगर कुछ एक्वायर करती हूँ या जो भी मेरी होगी, इसमें से हो सकता है कुछ मैं यूज भी कर लूं, तो वो जो है दोनों बेटों को बराबर जाएगी। तो मैंने कहा फिर आप किस लिए विल बनाना चाह रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया और प्रैक्टिकल, और वो उसी से है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक तो म्यूटेशंस वगैरह में बड़ी आसानी हो जाती है। कोई गुड़गांव में प्रॉपर्टी है, दिल्ली में प्रॉपर्टी है, इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी, तो म्यूटेशन अथॉरिटीज के पास प्लस इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास बहुत आसानी हो जाती है कि एकदम से, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न भी बाद में डलनी होती है, तो उसके लिए बड़ा आराम हो जाता है। तो हालांकि इट डिड नॉट चेंज द कोर्स ऑफ नेचुरल सक्सेशन। आई नॉट ओनली ड्राफ्टेड द विल फॉर हर, आई इवन गॉट इट रजिस्टर्ड बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि फिर फॉर्मेलिटीज बहुत कम हो जाती हैं। अब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के केस में ले लीजिए, अगर आपके पास रजिस्टर्ड विल है तो वो कुछ हार्डली एक इंडेमनिटी या 2-4 और चीजें मांग के, बेसिक इंफॉर्मेशन मांग के, दे विल म्यूटेट इट इन योर फेवर। बट इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड, टेक्निकली दे आर रॉन्ग। टेक्निकली दे कैन नॉट से कि क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है इसलिए हम नहीं करेंगे, मगर उनका एक प्रोसीजर बना होगा और चला आ रहा है। तो एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि ठीक है आप ना सिर्फ विल बनाइए बल्कि उसको रजिस्टर भी कराइए। Thank you so much, Ajay. This has been wonderful. In fact, right now 304 participants are listening to you. And let me ask them a question in the chat box. आपको लग रहा है कि आपको कोई अच्छी लर्निंग मिल रही है? अगर लर्निंग मिल रही है तो एक बार जरा थम्स अप मेरे को चैट बॉक्स में दे दें, या फिर वाई टाइप करें विच मीन्स यस, और या यस टाइप करें, ताकि हमें पता लगे कि आपको ये प्रोग्राम कैसा अच्छा लग रहा है। और अजय देखिए AK-47 की तरह यस 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 बहुत सारे शुरू हो गए हैं, विच मीन्स यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब in terms of educating everyone along. All over India, 306 people are participating and everyone is saying great learning. Yes, yes, super, super, excellent. Thank you so much, Ajay, for all the inputs that you are giving us. You are our hero today, and the Masala Chai, you are actually giving good justice to the chai, chatting, hacking, advising, and igniting the discussions. Wonderful. Thank you very much, participants, for all your inputs. And let me now move to some other parts of it. अजय, जो आपने स्टोरी सुनाई कि एक बच्चा बाहर है, एक दिल्ली में है, एक बड़ा सा घर है जिसमें दिल्ली वाला बच्चा रह रहा है, बड़ा वाला तो बाहर है, लेकिन अब वो घर दोनों के नाम पे है। जब वो वापस आता है तो जो दिल्ली में रह रहा है वो तो कहता है भैया मैं तो अब यहाँ रहता ही हूं, मैं तो इसे खाली नहीं करूंगा। जो बाहर वाला है उसका आधा हक बनता है। ऐसी स्थिति के अंदर वो विल में तो लिखा हुआ है कि उसका आधा हक है, लेकिन वो अपना आधा हक पाए कैसे? इसके ऊपर जरा क्विक रिस्पांस, बिकॉज आई नो इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, बट लोगों के दिमाग में इस तरह के सवाल होते हैं। नहीं देखो, अगर रिलेशंस अच्छे हैं तो विदाउट डिस्टर्बिंग, अगर एक भाई जो है उसका कई साल से रह रहा है, तो अगर आपस में बात करके, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि लिटिगेशन में तभी जाओ इफ यू डोंट हैव एन ऑप्शन। अगर
आपका आपस में बैठ के और समझौता हो सकता है, यू कैन अराइव एट अ सेटलमेंट, देन इट्स ऑलवेज बेटर। ओनर आप हो, ओनरशिप को डिनाई भी नहीं करेगा, बट सिर्फ ये है कि हैसल्स अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा गिव एंड टेक करके इट्स ऑलवेज बेटर कि आप तो उसके आप ये साथ। कहना चाहते हो कि विल इज द एंड रिजल्ट ऑफ द गुड इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर, सेइंग दैट कि मेरे बाद में झगड़े ना हो इसलिए मैं ये विल सेट करके जा रहे हैं। और अगर विल में कोई डिस्प्यूट हो जाए और कई बार उसमें क्रिएट कर दी जाती है विद सम रॉन्ग इंटेंशंस, अगर हम पीसफुली जितना सेटल करा लें उतना बेहतर है, बजाय कि लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड कोर्ट में जाएं। तो इससे तो आप वकीलों का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे अजय। नहीं नहीं, नुकसान नहीं होता, हमारे पास एडवाइस के लिए आते हैं और फिर 4 काम और लेके आते हैं, तो हमारे का इन द फाइनल एनालिसिस आई एम नॉट, वी आर नॉट लूजर्स हियर। You are talking like a perfect businessman. I really like that, Ajay. Thank you so much. Now let एक me just एक एक राजीव, yeah, सॉरी sure. इंटरप्टिंग यू, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग राइटिंग द विल, अगर आपके पास एक अच्छा डिपेंडेबल आदमी है तो यू शुड आल्सो अपॉइंट एन एग्जीक्यूटर। I was coming to that, Ajay. But लोगों की एक रिक्वेस्ट आ रही है कि अगर आप अपने वॉइस का लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें, थोड़ा और जोर की बोलें। अच्छा, कम आ इमेजिन गया? कीजिए कि जज थोड़ा दूर बैठा है और आप उसी से बात कर रहे हैं, मेरे से नहीं। चलिए, गुड। अब बात आ जाती है एग्जीक्यूटर की। क्या दो विटनेसेस जो हैं उनमें एक एग्जीक्यूटर भी हो सकता है या एग्जीक्यूटर अलग होना चाहिए? जो 2 टेस्टिंग विटनेसेस हैं उनके पास तो कोई और रोल होना ही नहीं चाहिए, ना एग्जीक्यूटर का और ना ही वो बेनिफिशियरी होनी चाहिए। अगर आपने गलती से किसी बेनिफिशियरी को टेस्टिंग विटनेस बना दिया, या टू से डिफरेंटली टेस्टिंग विटनेस को कुछ उसमें बेनिफिट दे दिया अपनी विल में, तो अब विल को सेव करने के लिए he will have to lose that benefit, So because the witness has to be with clean hands, that he was just a witness to the entire ceremony of signing of the will. yes, And अब सवाल यह कि क्या एग्जीक्यूटर जो है वो बेनिफिशियरी हो सकता है? yes, any of the beneficiaries can be an executor, या कोई और डिपेंडेबल आदमी, अगर आपको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार कल को डिस्प्यूट हो सकती है, तो कोई और आदमी जिसकी सारे सुनते हो, कोई रिलेटिव हो, कोई अच्छा फ्रेंड हो, कोई और अच्छे स्टेचर का हो, बट यस, व्हाट यू आल्सो नीड टू कीप इन माइंड इज एग्जीक्यूटर शुड बी अवेलेबल at the time when he is required, And also should be younger. should be, हाँ, should be, तो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उम्र थोड़ी कम ही हो तो बेहतर हो। लोग कभी सीनियर लोगों को बना देते हैं, which is not advisable, because अगर executor is not available at the time of execution of the will, तो फिर उनको बनाने का फायदा ही क्या हुआ। बट अजय, अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी आता है कि क्या एग्जीक्यूटर प्रोफेशनल फर्म्स हो सकती हैं बजाय कि कोई एक व्यक्ति? क्योंकि अब कोई व्यक्ति है, उसको भरोसा नहीं है, बट उसको भरोसा है कि चलिए मान लीजिए लेक्सेंटिस लॉ ऑफिसेज जैसी ऑर्गेनाइजेशन, इनको मैं असाइन कर देता हूं कि यू विल बी द एग्जीक्यूटर ऑफ माय विल। कैन दैट बी डन? क्या ये प्रैक्टिस है भारत के अंदर की फर्म्स को या फर्म्स के सीनियर पार्टनर्स को एग्जीक्यूटर असाइन कर दिया जाए और उनके एब्सेंस में दूसरे ऑफिशियल्स हैं वो उसे एग्जीक्यूट कराएं? एटलीस्ट उसमें प्रोफेशनलिज्म रहेगी, कमिटमेंट रहेगा। नहीं, उसके लिए एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप बनाइए तो इंडिविजुअल्स को ही, बट यू कैन हैव मोर देन वन एग्जीक्यूटर। ये जरूरी नहीं है कि एक ही एग्जीक्यूटर होगा। ओके, यू कैन हैव मोर देन वन एग्जीक्यूटर एंड यू कैन से कि भाई अगर इफ देयर आर मोर देन वन तो फिर वो डिसीजन कैसे लेंगे। सपोज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो हायरार्की भी तो बना सकते हैं कि पहला वाला अगर वो नहीं होगा तो दूसरा वाला, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा वाला। इन दी ऑल्टरनेटिव भी बन सकता है, जॉइंट भी हो सकता है, जॉइंट भी हो सकता है, सेवरल भी हो सकता है, और उसमें भी मेजॉरिटी व्यू एंड ऑल, वो सारी कंडीशंस आप रख सकते हैं। देखते देखते ना अजय, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है और मेरी नजर जो है घड़ी की तरफ बहुत जबरदस्त है। हमारे पास 26 मिनट रह गए हैं। मैं लोगों के कुछ और सवाल भी लेना चाहूंगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है जो कि मुझे खास तौर से थोड़ा पेन करता है। जो डिस्पैरिटी विल में लोग बॉय और गर्ल के बीच में करते हैं, हालांकि मेरे यहाँ तो इशू ही नहीं है, मेरे पास एक ही बेटा है, बट लड़की को कम देंगे, लड़के को ज्यादा देंगे, और फिर सक्सेशन एक्ट के अंडर इश्यूज आ सकते हैं। कभी लड़कियों से साइन करा लिया, ये बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आपकी एडवाइस लोगों के लिए क्या हो?
देखिए, ये तो टेस्टेटर की अपनी मर्जी है कि वो किसको कितना देना चाहता है। हम्म। अगर अगर तो बराबर दे रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम्म। हाँ, कुछ वो चैरिटी के लिए रख के फिर बराबर दे रहा है फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे वन पर्सन इज डिसइनहेरिटेड आइदर इन होल और इन पार्ट, हम्म। कि उसको इतना कम मिल गया है। हम्म। तो उसके लिए वन हैज टू गिव अ वेरी गुड रीजन, अदरवाइज द विल में लुक टू बी सस्पिशियस। तो लोगों के रीजंस ये भी हो सकते हैं कि मैंने बेटी की शादी में इतना खर्च कर दिया था इसलिए मैं उसको अब कम दे रहा हूँ, या उसको मैं ज्वेलरी दे रहा हूँ, या कुछ और दे रहा हूँ। हाँ, नॉर्मली विल्स में आप देखते होंगे यही होता है कि जी मैंने इसको ऑलरेडी सफिशिएंटली वो कर रखा है एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड अदर फंक्शंस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अब एंड शी इज वेरी वेल सेटल्ड इन लाइफ इन हर मैट्रिमोनियल होम ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से करके और फिर वो देते, बट देन द रीजन हैज टू बी गुड। आई थिंक आई मस्ट सैल्यूट इंडियन लेडीज ऑल्सो जो एडजस्ट जल्दी कर लेती हैं, अदरवाइज दिस कुड बी अ गुड ग्राउंड फॉर लिटिगेशन। डू यू एग्री विद मी? एब्सोल्यूट। ओके, ऑलराइट। अजय, अब जरा थोड़े उस कागज की बात करते हैं, विल की। इसको संभाला कैसे जाएगा? मैंने आज विल बना दी है, पता नहीं मैं कब जाऊंगा, मान लो 20 साल तक उसको संभाल के रखना है। किसके पास रखूं, कहाँ रखूं? देखिए, अगर तो आप एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं हाँ। तो इट्स बेस्ट कि आप एग्जीक्यूटर को बुला के उसको कॉन्फिडेंस में लेके उसको कंटेंट्स बता के समझा के एंड हैंड इट ओवर टू द एग्जीक्यूटर, सो दैट कल को द पर्सन इज इन अ पोजीशन टू एग्जीक्यूट इट। नहीं तो अगर आपने अपने पास ही रखी है एंड द एग्जीक्यूटर डजंट इवन नो ऑफ इट, तो भी वो फ्यूटाइल है। या एटलीस्ट अगर आप ओरिजिनल अपने पास रखना चाहते हैं कि अभी आप है कि कल को मैं हो सकता है इसको चेंज करूं या कुछ करूं, तो ठीक है, आप एटलीस्ट उसकी एक कॉपी जो है वो एग्जीक्यूटर को दे दें। प्लस इफ इट इज इन फेवर ऑफ सम बेनिफिशियरीज जो कि हु आर नॉट इन नेचुरल सक्सेशन, तो उनको भी पता ही नहीं लगेगा। आपने तो अपनी तरफ से बहुत पैसे दे दिया कि जी ये बहुत है, मेरे बच्चों के पास भी बहुत है और इतना जो है वो चैरिटी में जाना चाहिए, पर वो जिसको जाना उसको पता ही नहीं और बच्चों ने बताया ही नहीं। तो इन दैट केस इफ इट इज योर विश कि भाई ये होना चाहिए आफ्टर यू आर नो मोर, तो देन यू मस्ट इंश्योर के उसके पास बेनिफिशियरी के पास भी एक एक एटलीस्ट कॉपी जरूर हो। तो आई थिंक प्रैक्टिकल बात ये होगी कि अगर आपने एग्जीक्यूटिव बनाना है और आपने दोस्त को बनाने की बजाय उसके यंग बच्चों को बनाया जाए ताकि वो इन टच में हो, उनके पास कॉपी हो, कॉपी ओरिजिनल वाली हो। अब सवाल ये आता है कि जो कॉपी है वो कई बार डिस्प्यूट हो जाती है, जी ये तो साइन ही नहीं मिलता है जी। ऐसी स्थिति के अंदर कैसे इंश्योर किया जाए कि वो जेन्युइन एंड ऑनेस्ट विल लगे? देखिए, जहाँ डिस्प्यूट किसी ने क्रिएट करनी है, ऑब्जेक्शन रेज करनी है, तो साइन तो सबसे पहले डिनाई होते ही होते हैं। मगर मेरा मानना ये है और कई केसेस में किया भी है कि अगर विल बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, शॉर्ट एंड क्रिस्प है, तो आप ये इंसिस्ट करिए कि टेस्टेटर शुड मेक अ होलोग्राफ विल, जिसको हम कहते हैं कि हाथ से लिख दे। बहुत अच्छी बात कही, अपने हाथ की लिखी हुई विल। बहुत अच्छी तो बात अगर कही। आपने एक छोटा सा साइन तो चलो डिस्प्यूट कर दिया, पूरी की पूरी हैंडराइटिंग कैसे आप डिस्प्यूट कर लोगे? एग्जैक्टली। डिस्प्यूट तो कर लोगे, आई एम नॉट सेइंग कि डिस्प्यूट नहीं होगी, क्योंकि जैसे पहले कहा कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो डिस्प्यूट नहीं हो सकती, बट दी चांसेस ऑफ सक्सेस। नहीं, हम वकीलों की कैपेबिलिटी को कभी चैलेंज नहीं करेंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डिस्प्यूट तो क्रिएट कर ही देंगे। बट वो दैट विल ओनली बी अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। बट ऐसी जो ऑब्जेक्शंस हैं, ऐसी जो श्योर। डिस्प्यूट्स हैं, वो ज्यादा चलने वाली नहीं है। नो, दैट वाज इन द लाइटर वेन। सो सपोजिंग मैं उस विल को बना रहा हूँ, और मैं सभी लोगों के लिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस बार बार सामने आ रहे हैं, तो मैंने क्लब करके ले रहा हूँ कि आपने अपनी हाथ से विल बनाई और मे बी जो इंक पैड होता है उसमें आपने अपने फिंगर्स के इंप्रेशंस भी डाल दिए ताकि आपका डीएनए भी कागज के ऊपर आ गया। और साथ में अब आपके पास इतने बढ़िया बढ़िया मोबाइल फोन है, जब अब ये सब कर रहे हो उसकी छोटी सी रिकॉर्डिंग भी कर दो, आप यूट्यूब पे भी डाल दो, आपके विटनेसेस भी साथ में है, वो भी वीडियो में कैप्चर आ गए, तो आपने तो पूरी तैयारी कर ली। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है अजय? यूट्यूब वगैरह तक नहीं जाना। हाँ, आप अपना स्टिल नहीं, फोटो मैं जरा टेक्नोलॉजी को थोड़ा ज्यादा इमेजिन कर रहा था, आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। नहीं, लीगली तो वो भी परमिसेबल है, बट इट विल नॉट लुक गुड, श्योर। क्योंकि नहीं नहीं, अननेसेसरीली। आप यू कैन स्टिल पुट इट ऑन यूट्यूब विदाउट शेयरिंग विद पीपल, सो दैट्स अ प्रोविजन दैट इज अवेलेबल। नो, बट देन व्हाई पुट इट देयर? No, because only those who will have the link can only see that. That's the technology advantage. हाँ, वो ठीक है आपकी बात, बट अगर उसमें डिसइनहेरिटेंस या कुछ ऐसा है
तो वो अननेसेसरली जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आदमी जब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग अ विल एंड मेकिंग अ गिफ्ट राइट अवे? गिफ्ट आज की डेट में इसलिए एडवाइस नहीं करते क्योंकि जैसे ही वो गिफ्ट होता है वो चले लोगों जाते के वो बदल जाते हैं, हम्म और उसके बाद तो आपका ही यही भरोसा नहीं कि आप भी उस अपने मकान में रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। मतलब आपके सगे बच्चे आपको उसके बाद जो है आपका ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए बिल कर रहे हैं, मगर बिल जब कर रहे हो तो आप ठीक है स्टिल फोटोज ले लो, वीडियोस भी बना लो, सब कुछ कर लो, इट विल ऐड टू द ऑथेंटिसिटी, नो डाउट। बट आई थिंक गोइंग ऑन यूट्यूब एंड ऑल विल बी अ बिट टू फार फेच्ड। No, no, one has Like, to also start legal, thinking futuristically also in terms of having video evidences, and where do you store the videos? So that's the reason I gave the example of YouTube. You don't have to telecast it on Facebook. Anyway, एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे सामने आ रहा है. Mr. Mahendra Mahajan ने सवाल किया है, can I make more than one will? Say if I have 3 properties, can I make 3 separate wills, one for each property? yes, you can. There is no Simple, bar. There simple. is no bar. बल्कि इसी में एक और कंसेप्ट ऑफ कोडिसिल भी आता है कि आपने एक विल बनाई, उसमें अगर आप कुछ एडिशन या वेरिएशन करना चाहते हो तो यू कैन इवन गो फॉर अ कोडिसिल. What is a codicil? Now ये टेक्निकल टर्म है, लोगों को जरा एक्सप्लेन करें. कोडिसिल जो होता है वो विल को टोटली रिवोक ना करते हुए उसमें अगर कुछ चेंजेस आ गए हैं, आपने आज बनाई, 5 साल के बाद देयर इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, कुछ प्रॉपर्टीज कम हो गई, कुछ बढ़ गई, या आपके मन में आया कि नहीं, एक एग्जांपल देता हूं मैं, वो 2 बेटे हैं, दोनों के नाम बराबर बराबर एक एक प्रॉपर्टी कर दी, फिर ड्यूरिंग दैट पीरियड एक बेटा जाके अब्रॉड सेटल हो गया, अब उसने वापस आना ही नहीं, तो अब उस प्रॉपर्टी को उसको ना दे के इन लिeu ऑफ दैट कुछ और दे दो. तो विदाउट रिवोकिंग द विल एज सच और कैंसिलिंग, रिवोकिंग इज एज गुड एज कैंसिलेशन, वो ना करते हुए उसको ऑल्टर कर दिया आपने या ऐड कर दिया. So that is a codicil. Wonderful. So कंप्यूटर की भाषा में add, modify, delete on the will, you can do, that's a No, codicil. no delete. Not delete the portion part. Delete That's a is modification. revocation. Sure. Addition Incidentally, हीरू ने हमसे एक सवाल करा है जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि donation of organs must be mentioned in the will too. तो अजय ने हीरू ये कहा था कि विल में मेंशन कर दोगे तो ठीक है, अगर वैसे भी आपकी डिजायर है तो आपका फैमिली डेफिनेटली उसको ऑनर तो जरूर करेगी. तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप विल में मेंशन कर सकते हैं कि नहीं. इंसिडेंटली पर्सनल लेवल पे मैंने उसको मेंशन किया हुआ है. तो अभी बहुत सारे सवाल अजय और भी आ रहे हैं जो बिल्कुल हार्डकोर वकील वाले क्वेश्चन हैं. मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए एक सेकंड अवॉइड इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास कॉमन मैन के बड़े सारे क्वेश्चंस हैं और मैं पहले उन्हें उठाना चाहता हूं. और वकीलों के साथ डिस्कशन के लिए मैं यही कहूंगा कि प्लीज अजय टंडन को सभी लोग जानते हैं, फोन पे फिक्स कीजिए, उनके साथ में डिस्कशन कीजिए लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर. आज हम एक आम आदमी के क्वेश्चंस को पिकअप करके उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और कोविड का टाइम खत्म हो तो उनके ऑफिस में जाइए, उनके साथ गपशप मारिए, जहां उनका ऑफिस है बहुत कुछ खाने पीने की जगहें भी मिलती हैं वहां पर अच्छी सी. और अजय आपको इज ए वंडरफुल होस्ट, but at the moment please permit me to ask questions which are relevant for a common person because there are so many of them. I have almost 104 questions which are in front of me which I'll have to pick up. Ajay, sorry I interrupted you. You wanted to say something and add something to this, please. मैं वही कह रहा था कि जैसे अगर आप चाहते हो कि बॉडी आपने डोनेट कर दी या ऑर्गन डोनेट कर दिए, तो वहां भी इंटीमेशन टू दी कंसर्न्ड बॉडी और अथॉरिटी शुड बी देयर, और उसका आपके उनको भी रिलेशंस में या एग्जीक्यूटिव को भी पता होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली इन केस ऑफ आईज अगर आप 2 घंटे में वो नहीं निकाल लेते और यूज नहीं कर पाते तो फिर वो वेस्ट हो जाती है. तो टाइमली उसकी इंटीमेशन वगैरह के लिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि द कंसर्न्ड अथॉरिटी और द बॉडी इज आल्सो intimated in advance. In fact, we must be thankful to Mr. Rakesh Bhatia, who has also given a link in the chat box in terms of the Orbo of AIIMS. इसी तरह की बड़ी सारी और ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने खुद अपने आप को एम्स में भी क्यूट किया हुआ है. अब एक सवाल एक और आया है विष्णु जी का, आई थिंक ये बॉम्बे से ही लिख रहे हैं कि अगर हाथ से लिखी हुई है लेकिन विटनेसेस नहीं है तो क्या उस विल की वैल्यू होगी? तो कोई वैल्यू नहीं होगी अजय, क्योंकि अगर विटनेसेस नहीं है या विटनेसेस कल को उस विल को सपोर्ट नहीं करते तो इट्स अ यूजलेस पीस ऑफ पेपर. राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग. अब सवाल ये आता है कि आप प्रैक्टिकल रूप में बताएं, क्या विल को
शेयर कर दें पहले ही जिन जिनको हम देना चाहते हैं, दिखा दें। देखिए वो उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है, अनइक्वल है, किसी को डिसइनहेरिट कर रहे हैं, पार्शियली कर रहे हैं, टोटली कर रहे हैं। ये तो फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा फ्रॉम केस टू केस। इसलिए एक ब्रॉड इसका आंसर नहीं हो सकता कि डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, लोग फिर मुझसे सवाल कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प पेपर। ये फिल्मों में स्टैम्प पेपर लगता है अच्छा, क्योंकि वहां पर दूर से सिर्फ वो स्टैम्प नजर आती है। अजय के अनुसार, लॉ के अनुसार कोई स्टैम्प नहीं चाहिए विल के ऊपर, आप प्लेन पेपर पे विल बना सकते हैं। अजय, इज दैट राइट? एक बार फिर रीइंफोर्स करें, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर कमिंग अगेन, सो मे बी दीज पीपल वुड हैव जॉइन्ड लिटिल लेट इन टर्म्स ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए जहां नहीं भी जरूरत होती वहां पीपल ओवरडू उसको स्टाम्प पेपर में भी कर दिया, जस्ट टू से देखो जी स्टाम्प पेपर में लिख के गए हैं वो। तो इन लॉ इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर इट इज ऑन अ प्लेन पीस ऑफ पेपर और ऑन अ स्टाम्प पेपर। और राकेश जी ने एक सवाल किया, हाउ अबाउट मेकिंग डिसइनहेरिटेड विटनेस फॉर रजिस्टर्ड विल? अजय ने क्लियर कर दिया है उस चीज के बारे में। अजय, आप एक बार फिर जरा रीइंफोर्स कर दें कि डिसइनहेरिटेड पर्सन को क्या विटनेस बना सकते हैं। इट इज ऑलवेज, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू मेक हिम एन अटेस्टिंग विटनेस। हाँ, इफ आज की डेट में जिसको आप डिसइनहेरिट कर रहे हो एंड ही इज एग्रीइंग टू इट, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसका एफिडेविट ले लो saying कि he has gone through the contents of the will, copy whereof is annexed with that affidavit, and he consents. He agrees that this is the last will and testament of so and so, and it is genuine and valid, and I will not, I agree to it, I will not object to it. तो आपने आज ही उसका NOC ले लिया, that is okay, but that make it an independent document. बिल को मत खराब कीजिए, रिस्क मत लीजिए कि कल को एज एन अटेस्टिंग विटनेस वो मना कर दे कि मेरे साइन नहीं है या साइन है पर मुझे कुछ और बता के मेरे से तो कहा था जी ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वगैरह, बहुत कहानियां होती हैं। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इसको अवॉइड कीजिए। अजय, हालांकि आंसर मेरे हिसाब से बड़ा ऑब्वियस है, बट अगर आपके मुंह से लोग सुनेंगे तो और क्लैरिटी होगी। सवाल आया था कि क्या मैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को विल कर सकता हूं? आप उस प्रॉपर्टी को विल कर सकते हो जो आपकी प्रॉपर्टी है, इन लॉ जिसको हम सेपरेट आपकी प्रॉपर्टी कहते हैं। वो एंसेस्ट्रल होके आपकी सोलली बन गई तो आप कर सकते हो। अगर एंसेस्ट्रल में किसी और का राइट है तो आप उसका राइट विल नहीं कर सकते, अपना राइट उसमें भी कर सकते हो। So the basic thing is what you can will what you own, and even a share in a property, joint owners हो किसी के साथ, may not be ancestral property। वैसे भी दो जनों ने, दो भाइयों ने, दो दोस्तों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ले ली, वो तो ancestral नहीं हुई ना जी। मगर उसमें भी आप अपना शेयर वो विल कर सकते हो। यू कैन नॉट विल द शेयर ऑफ अ पर्सन विच यू डू नॉट ओन। और एंसेस्ट्रल में अगर एंसेस्ट्रल है, आजकल तो इट्स अ डाइंग कंसेप्ट एंसेस्ट्रल, वैसे अब हार्डली कुछ रह गया है 1956 से जब से ये हुआ है तब से वेरी फ्यू प्रॉपर्टीज एज ऑफ डेट आर एंसेस्ट्रल और एच्योर प्रॉपर्टी। तो उस डिबेट में आई थिंक लेट्स नॉट गो। हाँ, यस प्लीज। अजय, इसी से कनेक्टेड एक सवाल है जो मैं उठाना चाहूंगा, and I'm going to read it quickly. If husband and wife are the joint owners of a property and suppose wife dies without writing a will, then can the survivor or husband transfer the 50% share of the died person without having NOC from his major children or legal heirs? नो नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो अगर if she did not make a will in respect of her 50% share in the property, on her death that 50% gets divided into all the legal heirs, including the husband. Yeah. So let us assume that दो बेटे हैं तो फिर 3 हिस्से बनेंगे, एक हस्बैंड का और 2 बच्चों के। हाँ, तो 16.66 हस्बैंड को चला गया, he can make a will in respect of 66.66, एंड बाकी का जो है 16.66 ईच दो बच्चों का, वो उसके लिए वो विल नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो इनइफेक्टिव होगी क्वा दैट शेयर, that will not be valid, it can't be executed qua that share which he did not own.
इससे से जुड़ा एक और सवाल भी आया. The lady is asking कि can a wife register a will of her 50% share in favor of the children without letting the husband know of it? Yes, why not? और घर के कागज हस्बैंड के पास में है, तो ऐसी कागजों स्थिति में क्या? कागजों की कोई जरूरत नहीं है. all you need to say is कि I am the 50% owner of such and such property. प्रॉपर्टी अगर प्रॉपरली आइडेंटिफाइड है या अदरवाइज नॉट इन डिस्प्यूट है, तो हस्बैंड को बिना बताए भी यू कैन गो एंड गेट इट रजिस्टर्ड. देयर इज नो बार, नोबडी स्टॉपिंग यू. दैट्स अ गुड आंसर अजय. एक सवाल गोपाल सहजपाल जी ने पूछा है बॉम्बे से कि इफ विटनेस इज नॉट प्रिपेयर टू गो टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्टरिंग, देन हाउ कैन इट बी स्टिल बी रजिस्टर्ड? तो मुझे तो लगता है गोपाल जी आपको विटनेस ही चेंज करने पड़ेंगे जो वहां पर जाके करें, क्योंकि अगर आप रजिस्टर करा रहे हो तो आपको विटनेस तो वहां पर लेके जाने ही होंगे. देखिए, राइट अजय? बिना विटनेस के तो रजिस्ट्रार रजिस्टर ही नहीं करेगा. तो Hmm. उस केस में अगर आप ऑलरेडी विटनेस करा बैठे हो तो go for an additional witness. There is no bar. Minimum requirement is of 2 attesting witnesses, but they can be more. So you will have to carry at least 2 people with you as attesting witnesses who will have to confirm before the registrar कि हाँ जी, या तो ये मेरे सामने इन्होंने ये विल साइन करी या साइंड थी और इन्होंने एक्नॉलेज किया, या वो रजिस्ट्रार के सामने भी एक्नॉलेज कर सकते हैं ना कि यस मैं ये है और ये मेरे अटेस्टिंग विटनेस है. So that formality can be done there also, but you have to take the witnesses to the registrar, without which the registrar will not register it. Acha, I'm getting lot many other questions which are connected to the property management and mutation, etc., which I'm not taking it up because the subject is confined to will today. Maybe later on, sometimes Ajay has become so popular that I may invite him once more to Masala Chai with Rajiv Khurana, so that we can take up those subjects one by one. And there are some people asking me, Sunil Sehal is asking me, can I ask a question? My friend, ask the question straight away because time is running out. We got just 8 minutes left and there are still so many questions which we need to really take care of. अजय, एक सवाल ये आता है कि अब कई बार बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है. एक बच्चा है यूएस में रहता है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, परिवार यहाँ पर है, वो कहता है मुझे नहीं आना, मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी. अब बिना विल के अगर चले गए और वो आने को तैयार नहीं है, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? और अगर वो किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो क्या किया जाए? क्या प्रोसेस होना चाहिए? ये सवाल हैं कुछ आ रहे, जरा इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट दोबारा डालिएगा. हालांकि पार्टली वी हैव कवर्ड दिस. नहीं, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. The question is, the child is not interested in your property or the person doesn't have a child, but he has a property. अब उस प्रॉपर्टी को अगर वो निकल गए तो शायद दूसरे रिश्तेदार आ जाएंगे लड़ाइयां करने के वास्ते. वो कहता है कि मैं किसी और को दे देना चाहता हूँ, डोनेट कर देना चाहता हूँ, तो मैं क्या एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करूँ तो कैसे करूँ? नहीं, इस केस में आपके हिसाब से जो द पर्सन हु इज अब्रॉड, ही इज द सोल ओनर, सोल बेनिफिशियरी. हाँ, वो आना ही नहीं चाहता. नहीं आना चाहता तो ओनर वो है, बाकी उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे. अब वो वापस आके कुछ करेगा नहीं, प्रॉपर्टी वैसे ही बंद पड़ी रहेगी, तो क्या होगा? वो अलग बात है, बट ही विल कंटिन्यू टू बी द ओनर अनलेस ही डिस्पोजेस इट ऑफ ईदर बाय वे ऑफ अ सेल और समथिंग और whatever he may do. He may even donate it, gift it. He can do anything, but as long as he doesn't do anything, he continues to be the owner of that property. अच्छा, कुछ क्विक सवाल हैं आप जरा प्लीज. मान लीजिए वो उसने वो यूएस में बैठा है, उसको प्रॉपर्टी चली गई, कैन यूएस में बैठ के बिल बना सकता है जो इंडिया में एग्जीक्यूट हो सकती है? हाँ जी, कहीं भी बना सकते हो आप. यू कैन एग्जीक्यूट अ बिल. सिर्फ जो रिक्वायरमेंट्स एज पर इंडियन लॉ वो आपकी पूरी होनी चाहिए. अदरवाइज आप कहीं भी. बट रजिस्ट्रेशन के लिए उसको फिजिकली करना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉनिकली वहां से यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकता. जस्ट अ पॉइंट ऑफ क्लैरिटी. नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए इफ पावर ऑफ अटॉर्नी में तो आई विल हैव टू लुक इनटू इट कि क्या आई थिंक. आई एम श्योर पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कुछ कर ही सकता होगा वो. नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी से तो आप बिल कर ही नहीं सकते. Okay. You have to. No, I'm talking about the registration process. I think I need to look into it. Sure. No, there are so many complications which keep arising, so one has to have. I don't want to give a wrong answer. Absolutely right. We really appreciate that, Ajay. That's professionalism. Now, a very interesting question: if a person who makes his will is divorced, is it necessary to mention
this in the will that the divorce proceedings have been completed and settled and no amount is to be paid to the spouse? Ajay. Yes, you can. Okay. Rather, you should. You should. Kyunki on divorce, the spouse will not have any right. So that gets reinforced if it is there in your will also. बहुत सारे लोग ना टेम्पलेट्स मांग रहे हैं कि भैया एक स्टैंडर्ड चीज दे दो, मैं फिल कर दूंगा और वो विल बना लूंगा. तो अजय, ऐसी सिचुएशन में क्या टेम्पलेट्स आप रेकमेंड करते हैं लोग टेम्पलेट देखें और कॉपी पेस्ट मारें और अपनी विल बना डालें? टेम्पलेट तो आजकल आपको गूगल करेंगे तो वेब पे इतने मिल जाएंगे, बट माय एडवाइस ऑलवेज इज, क्या जरूरी नहीं है, ऑलवेज गो टू अ प्रोफेशनल and in your facts and circumstances, whatever is the best, the professional will not only advise you, he will get it done in the manner so that at a later stage, वही है ना कि आज आपने 100 रुपए बचा रहे हो और कल 1000 का नुकसान उठा रहे हो, वो चीज मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा. बाकी ठीक है, टेम्पलेट्स भी चलते हैं और करते हैं, मगर वही होता है कि देन एट टाइम्स पीपल गो रॉन्ग. वो बना दिया कि जी मेरे बाद इसको, उसके बाद उसको, उसके बाद उसको. सो अ गुड प्रोफेशनल विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ these nuances and you will not go wrong on that. अजय, इसको ना मैं मसाला चाय की तरह जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इन डिफरेंट तरीके से. भगवान ना करे अपने आपके हाथ में एक बहुत बड़ा कट लग जाए और यहाँ पे स्टिचिंग की जरूरत हो, आप क्या करेंगे? आपका आंसर होगा भाई डॉक्टर के पास जाएंगे. क्यों? बाजार में पेड़ के नीचे मोची बैठा है, वो कहता है चमड़ा तो मैं भी सिलता हूँ, मुझे मौका दीजिए, मैं आपके चमड़े की सिलाई कर दूंगा. आप उससे सिलाई करवाओगे? नहीं कराओगे. आपका जो टेलर है वो भी सिलाई करता है, लेकिन आप क्या इस चमड़ी की सिलाई उससे करवाओगे? नहीं कराओगे, बिकॉज यू नीड ए प्रोफेशनल डॉक्टर. Similarly, in order to safeguard your interests, in order to safeguard that there is a peace in the family and you will properly, you need to also go to a proper lawyer. And therefore, don't just bank on a normal standard template unless there is no cumbersome, as Ajay says, simple सी will है, अपने हाथ से लिखो. उन that case में बनाइए, witnesses लगाइए और वो सारी की सारी जो compliances है उन्हें पूरा कीजिए. अदरवाइज सिचुएशन ऐसी भी आएगी जो अभी एक केस आया कि आप 50 साल से एक बेटे के पास रहते हैं, दूसरे बच्चे ने परवाह ही नहीं करी, लेकिन विल नहीं बनाई और एंड यू पास्ड अवे. अब क्या उस बच्चे का हक बनता है क्योंकि 50 साल से उसने सेवा ही नहीं की? अनफॉर्चुनेटली हक तो बनता है. Am I right, अजय? बिल्कुल बनता है जी, उसका पूरा शेयर. ऐसी स्थिति के अंदर आप एक सही एडवाइस लें, अच्छे प्रोफेशनल से एडवाइस लें तो बात बनेगी. There are so many questions, Ajay, which are still pending. I'm really getting scared because a lot of people are going to accuse me, because I'm not going to extend the session because we started on time and we'll be finishing on time. So what I can request Ajay Tandon is, in case your email ID could be shared with people, and maybe in case some of those questions could come to you directly and your team could answer some of that, or on telephonic, give them a 5 or 10 minute tip. If that is possible, Ajay, then I can share it here. Absolutely. I'm not doing any, absolutely, because I'll not be in a position to cover as many questions which have come in front of me now. We have a website www.lexindis.com. उस पे जाइए. Otherwise, mail at Lexindis पे आप you can mail your queries, या webinar at Lexindis पे भी करेंगे तो we'll look into it and we'll get back to you. और अगर आप मेरे पास भी भेजेंगे तो मैं ड्यूटीफुली अजय के पास भिजवा दूंगा. हाँ. आप राजीव जी को भी भेज सकते हैं. So this has been a wonderful session, Ajay. We are in the last 1 minute of our session. There are still many questions which are pending. Overall, there are 142 questions, and amazing thing is, right now there are 288 participants from across the country who are attending it. According to me, and you are one of the best guests I've ever had, and I'm sure people will agree with me. And if you do agree that this session has been pretty good, just give us a thumbs up or type Y. Y means yes. And we'll be really grateful in terms of hosting future programs also. And maybe because you are liked it, I may invite Ajay and maybe members of his team also to Masala Chai with Rajiv Khurana once again, maybe after a few episodes, so that we can take up some other dimensions. And do mention which dimension you would like me to discuss, and we could take up those discussions, which could be of benefit to everyone. Ajay, there is an AK-47 shootout on why, yes. This has been a phenomenal success. And thank you, Ajay, for joining us. You've been putting it in a very simple, precise manner
and that speaks about your thoroughness on the subject, your command of the subject. 1 hour was not sufficient. This was just, the curiosity of the people I wanted to settle, but I am sure in times to come, we would have more discussions which could be of great benefit to everyone. Time is precisely 7:30 p.m. Time now to close the session. Thank you so much for the Masala Chai with Rajiv Khurana, and of course, the passing words by Ajay Tandon. Thank you very much, Rajiv. It's been a pleasure, and it will be a pleasure to join you again anytime you say. And thank you all the participants for being here till the end. Thank you very much. Thank you, friends.